Hello and welcome back to the channel Physics Safari. My name is Abhishek and this is going to be the 7th video lesson on the relative motion in 2D. In the previous class, I have discussed about the shortest distance, also the cases in which the bodies were colliding, and I have introduced you guys to the new term that's called relative angular velocity. I have introduced you to the new term that is called relative angular velocity. So today I'm going to discuss about that. Relative angular velocity. We represent this with omega. Last class में मैंने बोला था कि भैया this is all about if I use this place, omega, that is relative angular velocity, is defined as the perpendicular component of the relative velocity upon the length of the point of the observation and the point where we have to talk about the velocity. ये हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी in the previous class. आज I'm going to help you to understand this with some examples. Examples आज कोशिश करेंगे, समझेंगे और अच्छे अच्छे examples हम लोग करेंगे ना. चलो एक simple question से start करते हैं. Let's suppose number 1. I believe this is visible in the camera. एक simple सा question देखते हैं. Let's suppose I have dropped an object. I have dropped an object. इसको from here an object is dropped. So when I say the word dropped, which essentially means that initial velocity is 0, ये बातें सबको पता है already, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ना. So let us suppose it is dropped from the height of 110 meter रखो, 110 meter, and this length, a certain length, maybe 40 meter away from the foot of this tower, an observer is placed और ये देख रहा है इस object को. You have to find omega of, let's suppose this object is A and this is observer O, omega of A with respect to observer O after कितने टाइम पे, आफ्टर 2 seconds कर लेते हैं ना, 2 सेकेंड में हो जाएगा 4 सेकेंड कर लो, आफ्टर 4 सेकेंड. You have to find the relative velocity, relative angular velocity of this object which is dropped from the height of 110 meter with respect to this observer who is 40 meter away from the foot of this perpendicular height or wall, जो भी बोलना बोल लो, after time t is equals to 4 second. तो इस क्वेश्चन को साथ में करते हैं, आप समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से करना. पहली बात तो ये कि भैया ये 4 सेकंड में ना ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं नीचे आ चुका होगा. दिस वुड हैव बीन, लेट्स सपोज हियर, यहां पहुंच गया है इन 4 सेकंड्स ना, 4 सेकंड में वो नीचे आ गया है. तो कितना नीचे आएगा जी, अपने को पता है h is equals to ut plus half at square, और इस केस में ut minus half gt square होगा. u is 0 क्योंकि it is dropped, तो half gt square. इसमें मेरे को लगता नहीं किसी को दिक्कत होना चाहिए. नेगेटिव बिकॉज इट इज कमिंग डाउन, और नीचे को हम लोग नेगेटिव ले कर रखे हैं, तो इसके नाम हाउ मच 1/2 टाइम टेंस t 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर 16, so this is going to be negative 80 meter. So the height covered by this object in 4 seconds should be 80 meter downward, so negative आ गया. It means this length should be how much? 110 minus 80, ये आपको हो गया जी 30 meter. किसी को दिक्कत, किसी को डाउट नहीं ना? बहुत अच्छे. It means after 4 second the object is at height of 30 meter from the bottom. यहाँ से वो 30 meter ऊपर है. Now I want to find its velocity. कि भाई उस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना है. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, u माइनस gt इन दिस केस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी. u to 0 भैया, तो 10 टाइम्स ऑफ 4, so this is moving at 40 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव मींस डाउनवर्ड. इसका जो वेलोसिटी है v वो हो गया 40 मीटर पर सेकेंड. I want to find the relative angular velocity, and for that we know it is all about the perpendicular component to the length joining the observer and the object. If it is 30, 40, so this is going to be 50. इस बात को ध्यान रखना बच्चों. So we have to find the perpendicular component of this velocity. इसके perpendicular, this is the length, ये आपका length है जी. इसके perpendicular component को निकालना है आपको. तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो perpendicular component इस तरफ हो जाएगा. तो इसका एंगल निकालना होगा पहले अपन को. तो अगर ये थीटा है भैया, if it is theta, 90 minus theta, और ये आपका हो जाएगा थीटा. It means this component v perpendicular should be v cos of theta.
कोई मुश्किल बात नहीं है ना जी। v cos थीटा अपने को पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कैसे, यहां से मिल जाएगा। सो थीटा कैन इजिली बी फाउंड, सो वी नो दैट tan ऑफ थीटा शुड बी दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो 3/4 है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3/4 मींस थीटा इज 37 डिग्री, थीटा इज 37 डिग्री। ये सबको पता है, वेल नोन फैक्ट है, वेल नोन वैल्यूज है ना। अब अपने को चाहिए क्या, v cos थीटा चाहिए। आई वांट v cos थीटा। तो v कितना है 40, v इज 40 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो v परपेंडिकुलर बच्चों जो वो है v cos ऑफ 37 डिग्री। सो 40 टाइम्स cos 37 शुड बी हाउ मच, 4/5, तो 8 है ना जी। 32 मीटर पर सेकेंड इज द perpendicular component of the velocity. So omega should be how much? Omega should be this perpendicular upon the length which is how much, 50। बस ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। बाकी जो भी करो कैलकुलेट कर लो, कैंसिल कर लो। तो दैट इज गोना बी योर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर व्हिच इज एट 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा रफ्तार में जाएंगे आज थोड़ा रफ्तार में जाएंगे। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है इस टॉपिक में, तो आई एम श्योर यू गाइस आर नाउ ओके विद दिस टॉपिक। कुछ ज्यादा मुश्किल आप लोग को उतना भी नहीं आ रहा होगा। समझते रहो इस टॉपिक को और साथ में पढ़ते रहो, होमवर्क करते रहना। एंड आई एम श्योर and trust me you guys will be definitely better with this topic and you'll get better day by day। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं कि ऐसा कुछ है ना। लेट्स सपोज ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड हियर और एक ऑब्जेक्ट है which is moving towards right with a velocity of u। this is moving with a velocity of u, this is d, this is d। At this point of time, let's suppose t, find the value of omega at t। इधर रखा मैंने आपको, find the value of omega at t। Okay, you can pause the video, pause करो, try करो और फिर साथ में करेंगे, है ना जी। मजा आएगा है ना, बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, बहुत अच्छा लगेगा जी। देखो सिंपल सा बात है, ओमेगा शुड बी हाउ मच, v रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, v रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन द लेंथ। सो भैया यहाँ पे जो लेंथ है बच्चों वो ये वाला हो गया है ना, d रूट 2d। सो ओवर हियर l मान के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लोग उसको इनपुट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट जॉब व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस। तो बच्चों वन इज तो ऑफ कोर्स u, परपेंडिकुलर शुड बी लाइक दिस, दिस इज योर v perpendicular। Now we know that these two are equal, so this is going to be 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने आसानी से दे रखा है, तो लाइफ हमारा आसान हो गया इसमें, है ना। और एक कंपोनेंट इस u का अलोंग दिस लाइन जाएगा, जिससे मेरे को कोई लेना देना है नहीं। नाउ ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा u अपॉन cos 45, तो u अपॉन रूट 2। बस इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है ना। कितना हो गया जी, u अपॉन रूट 2 अपॉन लेंथ रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 टाइम्स ऑफ d। भैया कितना हो जाएगा, रूट 2 विल कम डाउन, विल बी हैविंग u अपॉन 2d। सो दिस इज योर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एट द गिवन टाइम t, है ना जी। बढ़िया, चलो रफ्तार में करेंगे आज, एक और देखते हैं। अब देखो कि ना ऑब्जेक्ट वाज स्टेशनरी इन बोथ द एग्जांपल्स। इन दोनों क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो मूव, सॉरी ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, वो मूव नहीं कर रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी इज आल्सो मूविंग। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर्स आर मूविंग, व्हाट गोना हैपन इन दैट पर्टिकुलर केस, उसका एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे जी। रेडी हो, चले करते हैं इसको, है ना। चलो तो लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है व्हिच इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है in this particular direction at a distance of 2 meter from here। इसको a मान लो। another object, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, another object is moving
एट वेलोसिटी ऑफ 4√2 मीटर पर सेकंड। हाँ, √2 देख के समझ गए हो कि सर ने 45 डिग्री देना है, सही पकड़े हो। ये हो गया जी 45 डिग्री, आपने सही सोचा, वो 45 डिग्री होगा। नाउ लेट्स सपोज दिस इज बी, ये आपका बी है। क्वेश्चन वही घिसा पिटा सेम चीज है, फाइंड ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको आप लोग करो, ट्राई करो, है ना, जस्ट ट्राई दिस आउट, फिर हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे जी। आप लोग इसको ट्राई करो, फिर हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे, है ना, बढ़िया। आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव गिवन इट अ ट्राई, आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग साथ में इसको करते हैं। तो ये रहा हमारा डस्टर, और ये मैंने इसको साफ कर दिया जी, ये हो गया आपका क्लियर। चलिए साथ में इसको हम लोग अब करते हैं, बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। पहले तो देख लेंगे कि इसका वेलोसिटी कैसे ब्रेक करोगे। तो ए तो हो जाएगा आपका 4 एंड दिस साइड आल्सो इट इज गोइंग टू बी 4। दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 10 cos 30, सो 10√3/2 और 10 sin 30, ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। If I try to figure out the relative velocity of B with respect to A in perpendicular direction, इसको देखेंगे हम लोग। इस डायरेक्शन से अपने को कोई लेना देना है ही नहीं ना, उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं। तो V relative of B, और ऐसे निकाल दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है, velocity of B with respect to A, है ना। ऐसे चाहोगे करना तो इसको दो पार्ट में लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म में, along the perpendicular, along the horizontal। बट अपने को इससे मतलब नहीं है, we do not have to talk about these velocity, इस कंपोनेंट से मतलब नहीं है। तो मैं सिंपल बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के, इस केस के बात कर रहा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया, डाउनवर्ड है ना, -4, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 ऊपर की ओर, सॉरी 5, माय बैड, 5 ऊपर की ओर। तो आई शुड बी हैविंग हाउ मच, -9 मीटर पर सेकेंड। So this is the velocity of B with respect to A in the perpendicular direction. We do not need to talk about the x coordinate, I mean like a horizontal component, उससे कोई मतलब है ही नहीं अपन को, है ना। So this is what we have. Our distance is given which is 2 meter. So omega of B with respect to A should be how much? Downward है, 9 है, नो, तो इसको ऐसे लिख दो, है ना, 9, और डिस्टेंस कितना है जी, 2, that is gonna be 4.5 रेडियन पर सेकेंड। हाँ, इसका डायरेक्शन पूछ सकता है, तो इसके इसमें क्या होगा, वो नेगेटिव वेलोसिटी है, मींस डाउनवर्ड है, इट मींस क्लॉकवाइज, है ना, इस तरफ से वो जा रहा है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है जी, चलो ऐसा ही क्वेश्चन एक और, सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा पानी पी ले। वी गोना डू वन मोर क्वेश्चन लाइक दैट। आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, है ना जी, यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन। चलो एक और करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 10 मीटर, और एक बॉडी जो अपना है उसको हम लोग, अच्छा मैंने उस तरफ दिया था ना, एक ऐसे कर लो, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे दिया था, और इसको कर लो इस टाइम पे ऐसे कर लो। कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम, है ना। तो जस्ट टू मेक ब्रिंग द डिफरेंसेस, ब्रिंग द कॉन्ट्रास्ट, तो यहां पे ले लो इस एंगल को, वी कैन टेक 37 डिग्री, और इस एंगल को ले लो 45 डिग्री, 37 डिग्री एंड द 45 डिग्री ले लो, या फिर एक काम करते हैं ना, 37 53 का बना लेते हैं पेयर, 37 53 बना लो, 37 53 बना लो, 53 इसको 5 मीटर पर सेकेंड कर दो, लेट्स सपोज दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड कर लो। This is A, this is your B. Same question. Try the same question. Find the velocity, relative angular velocity of B with respect to A. Find the relative angular velocity of B with respect to A. Find the relative angular velocity of B with respect to A. चलो जी करके दिखाओ, कर लोगे ना,
1 मिनट में करके दिखाओ इसको, विदिन अ मिनट। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान से, प्यार से, मजे से इसको आप कर सकते हो। यू कैन डू इट डैम इजली, कोई मुश्किल काम है नहीं। चलो साथ में करें इसको, ठीक है जी। वही सेम ओल्ड स्टोरी, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट ब्रेक कर लो। 5 इस तरफ कितना हो जाएगा अपने को, cos 37 तो 4/5 हो गया जी इस तरफ, और एक जो इस तरफ आएगा 5 sin 37 तो 3 इस तरफ हो गया। आपका 10 इधर देख लो, 10 sin 53 तो आपको हो जाएगा जी कितना, sin 53 ना, तो 10 times 4/5 8 हो गया, और ये आपको हो जाएगा 6, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। Now we do not have to talk about this horizontal velocity, अपने को उससे कोई मतलब है नहीं। We need to talk about the perpendicular velocity. So the velocity of B with respect to A in perpendicular direction. Perpendicular बोले तो ऐसे, you know, ये मुन्ना भाई वाला हो गया, बोले तो ऐसे वाला। तो इसको I'm taking about the perpendicular, इसको perpendicular मानकर चल रहे हैं। Okay, तो ठीक है, velocity of B is 6 up, velocity of minus velocity of A. A is how much downward, तो भैया -4 हो गया, that means 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो if you look at the body B, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। अगर हम इसी this is your A, थोड़ा रफ्तार में बोल रहे हैं क्या हम, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। If I look at B from A, the perpendicular component of A should be in this direction. तो कैसे घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज ए घूम रहा है। अब तो हो गया काम। सो ओमेगा शुड बी हाउ मच, आपका वेलोसिटी जो हो गया 10, डिस्टेंस कितना है जी 10 हो गया। बड़ा खतरनाक सिंपल आंसर आ गया, इतना आसान आंसर है ना। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या। 6 उस तरफ हो गया, 5 4 सही तो है, ठीक है। सो दिस इज गोना बी हाउ मच, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है जी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। लेंथ अपने को पता है, सब कुछ पता है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में निकाला उसको, फिर सॉल्व करा और हमारा काम हो गया, ठीक है। चलो, आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं, ज्यादा परेशानी वाली बात इसमें है भी नहीं, आप लोग इजीली इसको करना सीख लिए होगे, है ना जी। देख लेना मास्टर ने कोई कैलकुलेशंस मिस्टेक नहीं किया ना, किया है तो उसको आप लोग चेक कर लेना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और वैरायटीज का क्वेश्चंस देखते हैं। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, है ना। तो वी गोना इरेज दिस आउट। चलो भैया तुम जाओ, ए रहा क्लियर बोर्ड, बढ़िया। करते हैं ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सपोज कि देयर इज अ लैडर व्हिच इज इंक्लाइंड ऑन द वॉल, और एक 10 मीटर का लैडर है which is lying like this way, है ना। And if the foot of the ladder is moving at 10 meter per second, let's suppose this is A, this is B, and this point is O. The foot of the ladder is moving at a velocity of 10 meter per second along the horizontal line. Find the relative angular velocity of B with respect to A. So B is the top of the ladder which is lying on the vertical wall, and A is the foot of the ladder which is lying on the horizontal wall. You guys have to find the velocity of relative angular velocity of B with respect to A. अच्छा, एंगल दे देते हैं, है ना। Let's say this is 53 degree and this is the 37 degree. वरना बोलोगे सर बनेगा कैसे, है ना जी, ठीक है। और सब दिया हुआ है ना, well length everything is given. Okay, फटाफट pause the video and then try and do it. जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो, फिर हम साथ में करेंगे, है ना। ओके, तो आई बिलीव यू हैव गिवन इट गुड ट्राई, और हम लोग अब साथ करने के लिए रेडी है ना जी, बढ़िया। तो एक सिंपल सी बात समझो, फॉर एनी रिजिड बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस लैडर, all the points should move with the same velocity along the ladder. So if I have one particular point on this marker which could be considered as a ladder, a rigid body है, so if this point is moving at certain velocity, then this point should also move in the same velocity. नहीं तो क्या होगा समझो, ये जो कैप है it's a lazy fellow, थोड़ा lazy है, थोड़ा आलसी है। This cap is a little lazy. If this point of the body is moving towards right और इसको नहीं मूव करना तो क्या हो गया, broken, ये टूट जाएगा। So the constraint motion says that all the points on a body should move with the same velocity along the body. ये बात को याद रखना, this is called constraint
और इस पर हम लोग ज्यादा बात करेंगे, एनएलएम टॉपिक में ज्यादा बात करेंगे। अभी इसी थ्योरी को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। पहली बात तो ये समझ लो भैया कि दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो देयर गोइंग टू बी सम वेलोसिटी अलोंग द लैडर एंड देयर गोइंग टू बी सम वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ इट परपेंडिकुलर टू द लैडर। तो अपने को चाहिए क्या, आई एम मोर कंसर्न अबाउट दिस, एंड इन दिस केस ऑफ कोर्स दिस वन, बिकॉज दैट इज गोना बी द वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लैडर। तो मेरे को तो निकालना बहुत जरूरी है। If it is 53, even this is going to be 53, and this is going to be 10 cos 53, तो बच्चों ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। इस बात को दिमाग में रखना जी। Now, so this velocity I know, so all the points along the ladder should move with the same velocity, so this is 6. अच्छी बात है। एक काम करो, इस velocity of this point along down the plane or down the line, let's say that is v. So can I say that v cos 37 should be 6? क्योंकि इसका वेलोसिटी तो 6 होगा ना। मैंने वही बोला कि along the ladder सबका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वरना वो लैडर बूम टूट जाएगा ना। तो can I say from here that v cos 37 डिग्री should be 6? इस बात को अच्छे से समझो, एनएलएम टॉपिक में और भी डिस्कस करूंगा इस पे। तो v should be how much? cos 37 कितना होता है? 4/5 is equals to 6. That means v should be how much? 2, 3, 15/2, 15/2 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, है ना जी। अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इस तरफ हो गया बच्चों, और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर आई बिलीव आप लोगों को दिख रहा होगा। v परपेंडिकुलर, इसको मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, v परपेंडिकुलर। So V perpendicular should be how much? V sine of 37 degree. What is the value of V? 15/2. That should be 15/2, or sine 37 is how much? 3/5. That means it is going to be 9/2 meter per second is going to be the perpendicular component of this velocity. अब हम तो relative में बात करते हैं. So relative velocity of B with respect to A, and as you know that we are only concerned about the perpendicular component, so velocity of B with respect to A in the perpendicular direction, तो क्या होगा? So velocity of B perpendicular is 9/2, और एक कितना है जी आपका? 8 minus 8। अच्छा, एक बात और समझो, अगर हम डाउनवर्ड को लेते हैं नेगेटिव, इस साइड को लेते हैं नेगेटिव, तो इसको लेना होगा पॉजिटिव, या फिर इसको लोगे पॉजिटिव और इसको लोगे नेगेटिव, तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव। तो इफ आई जस्ट राइट 9/2 माइनस 8, तो भैया लग जाएगी लंका आपकी, आप कर दोगे गलती। तो चुपचाप ध्यान से समझो कि इफ आई एम टेकिंग वेलोसिटी ऑफ बी, तो वो उस तरफ है, माइनस लोगे इसको आप। यहाँ पे मिस्टेक होता है, बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट करा है कि ऐसे मिस्टेक्स आप ना करो। दैट इज गोना बी हाउ मच? माइनस 89 कितना हो गया? 69, 25 minus 20/25/2 meter per second. Negative shows that with respect to A, the B would be appear to be moving in this direction, this side में ना। अब तो कहानी खत्म हो गया, निपट गया जी, है ना। तो ओमेगा should be how much? Component of the perpendicular velocity देख लो ऐसे, है ना, 25/2, और लेंथ कितना है? 10 मीटर। तो भैया ये हो गया आपका 10 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो हो गया 12.5 by 10, 1.25 रेडियन पर सेकेंड। ऑल गुड, चलो अच्छी बात है। तो या वी विल स्टॉप हियर ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। बच्चों, आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन वी गोना डू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, और कुछ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे इसके क्वेश्चंस करूंगा, एंड देन आई एम गोना गो टू द रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, एंड जल्दी ही एनएलएम स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी हम लोग फटाफट करेंगे। ठीक है जी बच्चों, so thanks for watching, see you guys in the next video, till then keep learning and keep studying, take care, bye bye।